वेलकम इन करियर एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लास। मैं पंकज क्वात्रा आज आपके लिए लाया हूं डिक्टेशन, शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन। और आज की डिक्टेशन ये लीगल डिक्टेशन है। लीगल डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स की होती है जो कोर्ट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो डिक्टेशन सेम ही होती है, लेकिन इस डिक्टेशन में कुछ लीगल वर्ड्स जो कोर्ट में यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो वर्ड्स की डिक्टेशन आ जाती है। तो आज की डिक्टेशन आपने एंड तक देखनी है और वीडियो को एंड तक देखने, यानी एंड में आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं और डिक्टेशन लिखने के बाद आपने इसको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करने के बाद इसको चेक करना है। चेक करने के लिए डिक्टेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर मिस्टेक्स ज्यादा हैं तो आप इसको एक बार फिर से लिखने का अभ्यास करेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ। शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। यस, बी रेडी, स्टार्ट। द मेन डिस्प्यूट इन्वॉल्व्ड इन दिस अपील concerns the question of necessity of presence of a purchaser of immovable property before the authority under the Registration Act 1908 at the time of effecting registration of a deed of conveyance. In the suit out of which this appeal arises, the plaintiff claimed declaration of himself as the lawful owner in possession of the suit property. The plaintiff is the appellant before us. This suit was instituted and was registered as original suit number 132 of 1982 in the Court of Civil Judge, Junior Division, Mendak. The plaintiff also claimed permanent injunction against the defendants, restraining them from interfering with his peaceful possession of the suit property and enjoyment thereof. The property in question comprises of approximately 4,500 square feet of land in a village by the name of H. Kopalu in Malavallu Taluk in the state of Karnataka. Originally, this property bore site number 21, which was subsequently numbered 23. Parachin, the plaintiff's case before the trial court was that this property was allotted to one G.V. Gowda under a village shifting scheme. In the suit, the plaintiff contended that he had come in possession of the subject property initially as a tenant and subsequently as the purchaser thereof. He has run a case before the trial court that he has been in possession of the suit property for about 20 years prior to filing of the suit. Respondent numbers 7 to 9 in this appeal derived their interest in the property through Mr. Gowda, since deceased son of the original allottee G.V. Gowda. In the suit, these three respondents
were defendant numbers 1A, 1B and 1C. Their predecessor M. Gowda was originally impleaded as defendant number 1. The respondent numbers 1 to 6 are legal representatives of 1 M. Gowda, since deceased, who contested the claim of ownership of the plaintiff over the subject property. Said M. Gowda was impleaded as the second defendant in the suit. On his demise, respondent numbers 1 to 6 were substituted as defendant numbers 2A, 2 to F. They have disputed plaintiff's possession of the suit property. They claim to be actual owners of the property through their predecessor. There have been litigations in the past over the same property among the same set of parties or their predecessors. थैंक यू। आपने सारी डिक्टेशन लिखी होगी और डिक्टेशन के बाद मैंने बताया कि आपने इसको ट्रांसक्राइब करना है, तो आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे और इसको चेक करेंगे। तो आज की डिक्टेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो थोड़े टफ हैं, जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको वो कुछ वर्ड्स बता देता हूं जिनके मीनिंग आपको पता होने हैं। एक वर्ड आया है कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड का मतलब होता है सेल डीड, यानी ट्रांसफरिंग द लीगल राइट्स ऑफ ऑनरशिप। आप कोई अपने राइट्स, ऑनरशिप के राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए जो पेपर बनते हैं उनको कन्वेंस डीड कहा जाता है। सूट, सूट का क्या मतलब है? यहां सूट का मतलब है मुकदमा, केस, प्रार्थना, प्रेयर, रिक्वेस्ट, निवेदन आदि। और प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब है वादी या अभियोगी कह सकते हैं, डिबेटर, परस्यूअर भी कह सकते हैं, कंप्लेनेंट भी इसका मीनिंग होता है। तो वर्ड मीनिंग आपको पता होंगे तो आप इसको इजीली ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपने हर डिक्टेशन के बाद कुछ वर्ड्स एनसर्कल करने हैं और उनके मीनिंग जरूर देखने हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए डिक्टेशन किस बारे में है और क्या है। नेक्स्ट जो वर्ड मैंने एनसर्कल किया है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, अथॉरिटी, कब्जा भी कह सकते हैं इसको। और इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब है आदेश, आज्ञा, रूलिंग कहते हैं जिसे, निषेधाज्ञा जिसे कहा जा सकता है, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो वर्ड है कंपेराइजेस। कंपेराइजेस का मतलब है शामिल, समावेश या इंक्लूड भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट का अर्थ है आगामी या बाद वाला, फोर्थ कमिंग, नेक्स्ट जिसे बोलते हैं। और अगला वर्ड देखते हैं डेराइव्ड। डेराइव्ड कई बार आ गया ये वर्ड। इसका मतलब होता है व्युत्पन्न, निकाला गया, यानी रिसीव्ड, अर्न्ड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसीज्ड। डिसीज का मतलब होता है मृतक, डेड, स्वर्गवासी, लेट कह देते हैं इसे। रेस्पोंडेंट, ऊपर एक वर्ड आया था, ये उसी का अपोजिट है रेस्पोंडेंट। प्लेंटिफ जो आया था ऊपर, रेस्पोंडेंट होता है प्रतिवादी। प्रतिवादी मतलब एक्यूज्ड, कॉम्पिटिटर, प्रावादी जिसे कहा जाता है। एक वर्ड है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का मतलब होता है अभियुक्त, उत्तर पक्ष, प्रतिवादी। जो ऊपर रेस्पोंडेंट आया सेम वही, मुलजिम भी कहते हैं। और डिफेंडेंट का मतलब रेस्पोंडेंट भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मतलब पूर्वज, पुरखे, एंसेस्टर जिसे कहते हैं, फोर फादर भी कहा जाता है। और इम्प्लीड, इम्प्लीड का मतलब है अभियोग चलाना, वाद चलाना,
प्रोसिक्यूट जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब है मुकदमेबाजी, केस, लॉ सूट, जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो उम्मीद है आपने सारा वीडियो देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मित्रों से शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता रहे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और धन्यवाद।